Hello everyone, welcome to the Civil Quest. So today we are going to see this topic, amendment of the Constitution as well as the basic structure of the Constitution. Right, so the reason why we are going to study these two topics together is basically that various constitutional amendments had triggered various Supreme Court cases, and those cases came up with different judgments concerning the amendment of the Constitution, when an amendment is valid, when it is not valid, can fundamental rights be amended or can they not be amended. So because these are both the things can be clubbed together and studied, so we are going to see these two topics together. All right, so first of all, let us quickly start with amendment. Okay, first of all, we will see amendment of the Constitution, right? So it is, as we had discussed earlier in the article on salient features, that amendment for the Constitution is dealt with in Article 368. It is present in Part 20, Article 368. It deals with Parliament's power to amend the Constitution and also the procedure that has to be followed to take up the amendment procedure. Okay, so Parliament can do anything, may by way of addition, variation, repeal any provision of the Constitution. Also, in that chapter on salient features, we had seen that Indian Constitution is neither flexible or nor very rigid like US. It is a synthesis of both. We will see Britain Constitution is most flexible. Why? Because there is no written constitution. Parliament is the supreme authority. So whatever Parliament decides, they will do it, right? Like an ordinary legislation. In US, it is very rigid because most of the amendment either they occur with the help of a constituent assembly or with the help of a convention, with the help of a convention, and that requires 3/4 of the states to agree to it. Then only it can happen. But in India, we have a synthesis of both. That part we have seen. Some provisions are there which can be amended like an ordinary legislative process, whereas some provisions are there that requires special majority of the Parliament as well as ratification by half of the states by ordinary majority. And also, depending upon the provision, we adopt different types of procedure for amendment. And also in US, you remember that it is 3/4 of the state, so it is more rigid than India, right? Indian Constitution is neither flexible nor rigid. Parliament cannot amend provisions that form part of the basic structure. So here only in the chapter on amendment, we have been introduced to the word basic structure. So we will see what basic structure is, what were the various amendments that triggered Supreme Court cases and finally led to the creation of basic structure doctrine, which is still evolving right now. Okay. This was ruled by the Supreme Court in Keshwananda Bharati case 1973. So Keshwananda Bharati case is very important in this context. Alright, so let's proceed. First of all, we will see what is the procedure for amendment under Article 368. Okay, first of all, we will see that. Alright, now bill can be introduced in either house of the Parliament. For instance, you are a member of Parliament and you want to initiate a constitution amendment in certain portion of the Constitution. You are, irrespective of the fact whether you are a member from Lok Sabha or Rajya Sabha, you can initiate the amendment bill. Fine. But state legislatures, they cannot initiate the amendment bill. Okay, in India, states are not allowed to initiate a constitution amendment bill, but in case of Parliament, you can belong to any house, and as well as you can be either a private member or you can be a minister. To introduce a constitution amendment bill in the house, you do not require presidential permission. Okay, prior permission by the presidential, and it can be moved in either house. Either you can introduce in Rajya Sabha, you can introduce in Lok Sabha, whether you are a minister, whether you are a private member. Private members are members who are not the ministers, right, who do not form part of the executive. Now must be passed by each house separately by a special majority. Special majority is majority of the total membership of the house. I had explained you with taking a round figure of 500. It is a majority of total membership, means 251, and 2/3 of the member present and voting. For example, 300 are present, to 2/3 of 300 present and voting. Okay, this is the special majority in each house that is required. No provision for joint sitting in case of disagreement. Ordinary bill जब हम पास करते हैं,
ऑर्डनरी बिल जब हम पास करते हैं तो उसमें दोनों हाउसेस अपने अपने बिल को पास कर देती हैं। उसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती। बट इन केस दोनों हाउसेज में डेडलॉक हो रहा है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में बार बार अटक जा रहा है, या राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा में बार बार अटक जा रहा है, देन इन दैट केस दोनों हाउस की जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, जिसको स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस करते हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। ओके, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज ऑल्सो प्रिलिम्स ट्रैप में अलग से हमने मेंशन भी कर दिया है, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग प्रोवाइडेड फॉर दिस बिल इवन इफ बोथ हाउसेस disagree. Joint sitting is only for ordinary bills. Okay, प्रेसिडेंट का assent, अब हम इसको आगे देखते हैं, ठीक है। इफ बिल सीक टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस must be ratified by the legislature of at least half of the states by simple majority. As I told you earlier, अगर कोई भी फेडरल प्रोविजंस है, हम लोग देखेंगे कौन से प्रोविजन हैं जो ऑर्डनरी सिंपल मेजॉरिटी से हो सकते हैं, लाइक एन ऑर्डनरी लेजिस्लेशन, कौन से अमेंडमेंट्स हैं जिनके लिए रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए, तो हम लोग आगे कुछ प्रोविजंस देख लेंगे, ठीक है। आफ्टर पासिंग बोथ द हाउसेज एंड स्ट्रेट रेटिफिकेशन इट इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। अब ये बात यही दी गई है, प्रेसिडेंट must give his or her assent. President cannot withhold or return the bill, ठीक है। प्रेसिडेंट का assent ऑब्लिगेटरी है और ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में डिसाइड हुआ था। अभी आगे चल के 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 हम एक आध बार और देखेंगे, फाइन, कि उसमें क्या हुआ था। ओके, सो प्रेसिडेंट ना ही इस बिल को रिटर्न कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन, ना ही एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट मस्ट गिव एन एसेंट। ओके, नाइदर प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लगेगी, ना ही अपने एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं। आफ्टर एसेंट इट बिकम्स एन एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड। फाइन, नाउ आई विल टेल यू द टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। तो किस में कौन सी मेजॉरिटी लगती है और कहाँ स्टेट रेटिफिकेशन होता है, और व्हाट आर द स्पेशल एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजंस दैट आर कवर्ड। प्रोविजंस तो अभी हम लोग डिटेल में आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप देख लो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस। इट इज़ एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, स्टेट रेटिफिकेशन इसमें नहीं लगती है। किन किन प्रोविजंस में ये होता है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। स्पेशल majority of the total membership of each house and 2/3 of member present and voting, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। और तीसरा टाइप का होता है स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्टेट्स रेटिफिकेशन। इसमें ये मेजॉरिटी के बाद हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड गिव असेंट विथ सिंपल मेजॉरिटी, मिनिमम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कितने टाइम पे भी दे सकते हैं। तो जो जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन स्टेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 368 itself, if you want to change the procedure for amendment, आर्टिकल 368 itself, जीएसटी काउंसिल, ये भी एक फेडरल प्रोविजन है जिसमें सेंटर और स्टेट मिलके काम करते हैं। जीएसटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट्स आर प्रेजेंट। तो इन केसेस में ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। वी विल सी व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पल्स, बट यू रिमेंबर देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी हियर, स्पेशल, सिंपल, स्पेशल एंड स्पेशल विथ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, एंड हाफ ऑफ द स्टेट्स हैव टू रेटिफाई। और स्टेट्स में आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, पार्लियामेंट में आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। नाउ सिंपल मेजॉरिटी से कौन कौन से प्रोविजंस हैं? दे आर पास्ड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस and they are not deemed as amendment of constitution under article 368। तो ये प्रोविजन है, ठीक है। ये प्रोविजन है, सॉरी दिस इज सीरियल नंबर। एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, formation of new states, alteration of boundaries, names of existing states. When we did the chapter on union and its territories, we had studied these, establishment of new states, formation of new states, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, ये ट्रैप हो सकता है, आपको लग सकता है कि पर एक सिंगल इंडिविजुअल स्टेट में अगर हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रहे हैं तो बाकी स्टेट्स के रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड शेड्यूल, वी रेड द शेड्यूल्स अंडर द सेलेंट फीचर्स। कोरम इन पार्लियामेंट, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट टू टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज द कोरम। Salaries and allowances of MPs,
रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हम आगे पार्लियामेंट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, नंबर ऑफ प्यूनी जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, conferment of more jurisdiction on Supreme Court, use of official language, citizenship से related provision, election to parliament and state legislature, election का पूरा प्रोसीजर यही डिसाइड करेंगे, भले स्टेट लेजिस्लेचर का भी डिसाइड कर रहे हैं पर उनका रैटिफिकेशन नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा. डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यूटी, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, ये भी हम लोग देखेंगे. मैंने बताया था 6th शेड्यूल में कौन से स्टेट्स आते हैं. ATM मनी, जिसमें मणिपुर नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इवन दो इट इज़ मनी बट मणिपुर इज़ नॉट देयर. सो ऑल दो पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, दीज चेंजेस आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड दे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये एक्सक्लूडेड है आर्टिकल 368 के अंदर क्योंकि हमें ईजिली अमेंड हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द नीड्स ऑफ द टाइम, ऐसा डिसाइड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने, तो इसलिए इसको इस तरह से रखा गया है. नाउ वी कम टू स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट्स. ये वाली चीज़ अब आप देखो. ठीक है, कौन से हैं इसमें, ये फेडरल प्रोविजंस होते हैं, ऐसे प्रोविजन जिसमें सेंटर और स्टेट्स से रिलेटेड प्रोविजंस को चेंज करना होता है, तो ये फेडरल प्रोविजंस होते हैं. फाइन, ओके. सो इसलिए स्टेट्स का लेजिस्लेचर का कंसेंट ज़रूरी है और वो अपना कंसेंट सिंपल मेजॉरिटी से देते हैं. तो अगर रिमेनिंग स्टेट्स कोई एक्शन नहीं ले, मान लीजिए हाफ ऑफ द स्टेट का आ गया, मान लीजिए 16 स्टेट्स ने कर दिया, ठीक है, कंसेंट दे दिया, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रिमेनिंग स्टेट्स ने नहीं दिया है, 16 या 17 स्टेट्स ने दे दिया, उसी समय ये मान लिया जाएगा कि रेटिफिकेशन आ गया. वी विल नॉट वेट फॉर द अदर स्टेट्स, राइट. और कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है स्टेट्स को कि वो कितने समय में अपना कंसेंट देते हैं. ठीक है, नाउ वी विल सी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर. प्रेसिडेंट पूरी कंट्री का है तो स्टेट से पूछा जाएगा. एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स की क्या एग्जीक्यूटिव पावर है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस. ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो स्टेट्स और सेंटर के बीच में एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव पावर, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. GST काउंसिल 279A आर्टिकल के अंडर इसके प्रोविजन हैं, गिवन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी, तो ये भी हम लोग देखेंगे. 7th शेड्यूल, इसमें तीनों लिस्ट होती हैं, तो तीनों का ज्यूरिसडिक्शन इंडिविजुअली डिफाइंड है, तो ये भी इसमें होता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द आर्टिकल 368 इटसेल्फ. ठीक है, इसके अलावा जो भी प्रोविज़न बचे, ठीक है, वो बचे आपके फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, और ऐसे प्रोविज़न जो 1 और 3 कैटेगरी के अंदर नहीं कवर किए गए हैं वो आएंगे आपके सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से. ठीक है, इसमें फंडामेंटल राइट्स, DPSP और जो भी प्रोविज़न इसके और इसके अंदर नहीं है वो यहाँ पे आएंगे. ठीक है, दैट्स ऑल, राइट. अब इंडिया वर्सेस USA ऑन स्टेट रैटिफिकेशन. एक्चुअली मेंस में एक सिलेबस है, टॉपिक है सिलेबस में GS2 में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इंडिया विथ अदर कंट्रीज़ को कंपेयर किया गया है. ठीक है, पॉलिटी एंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ वेरियस कंट्रीज, द कंपैरिजन विद इंडिया. तो वो टॉपिक हम अलग से करेंगे, पर अभी थोड़ा सा ये बता देते हैं अमेंडमेंट का प्रोसेस US में क्या है. एक तो 3/4 ऑफ स्टेट का चाहिए स्टेट रैटिफिकेशन, इंडिया में हाफ का चाहिए. ओनली पार्लियामेंट कैन इनिशिएट, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जिसको 2/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो propose, can also call for that constitutional, can also call for that constitutional convention and also bring about amendment. तो states भी amendment initiate कर सकते हैं unlike in India. ठीक है, अब लैंडमार्क जजमेंट्स कौन कौन से थे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लिए. देखो, प्रॉब्लम ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना चाह रहे थे पार्लियामेंट, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिमिट से ज़्यादा आप अमेंड करोगे और पूरी पावर आपको दे दी जाएगी, देन पीपल कैन फील दैट देयर फंडामेंटल राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स और बिकॉज सर्टेन अमेंडमेंट्स आर इन्फ्रिंजिंग देयर राइट्स. तो इसलिए जुडिशरी एक चेक
की तरह थी, तो कई सारे लैंडमार्क जजमेंट्स आए और उसके बाद इवॉल्व हुआ आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसीलिए मैंने ये दोनों चैप्टर्स को एक साथ क्लब किया है। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात है वो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको इस वाले पार्ट को रिविजिट करके एक बार रीडिंग कर लेंगे कि जो हमने देखा है वही चीज़ें हैं। फाइन, दिस इज योर वन लाइनर्स, these are for meant for revision only, this part. Okay, it is solely meant for revision. So we will first see basic structure का हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, डिफरेंट केसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या क्या थे जिनकी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई, और उसके बाद हम समझ जाएंगे क्लियरली। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को क्या पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है एज पर आर्टिकल 368 और नॉट। इट वाज डिबेटेड अक्रॉस वेरियस केसेस, जिसके बाद एंड में 1973 के केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये डिसाइड हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का आइडिया लेके आए सुप्रीम कोर्ट। फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हाउ द आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व्ड। ओके, फर्स्ट इन 1951 पहला केस आया शंकरी प्रसाद केस। Okay, now in शंकरी प्रसाद केस they try to amend bring about parliament came, क्यों आया ये केस, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी पार्लियामेंट दैट ट्राई टू curtail the right to property. Now right to property was initially a fundamental right, it was a part of article 19(1)(f). ठीक है, and it was also it was a part of this, right, पर right, तो इस फंडामेंटल राइट थी ये। अभी इसकी पोजीशन ये है कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ देयर इन आर्टिकल 300A, बट इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज़ अ लीगल राइट, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो उसमें इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश करी थी। तो शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 13 when we will do the topic on fundamental rights, we will see there is an article called article 13. article 13 में बताया गया है कि laws if any laws, if any constitutional amendment act is being done to change the fundamental right, it will not be considered as a law and will not be subjected to judicial review. ये आपका आर्टिकल 13। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप अमेंड कर दीजिए। आर्टिकल 13 के अंदर की डेफिनेशन जो है वो कवर करती है सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज को। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स लेके आ रहे हैं तो वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आता। ठीक है, फाइन। तो इन्होंने शंकरी प्रसाद केस में ये किया। फिर आया सज्जन सिंह केस 1964 में। अब ये लेके आए थे 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 में। फाइन, दे केम अप विथ 17th अमेंडमेंट एक्ट 19, ये रहा आपका 17th अमेंडमेंट एक्ट दैट केम अप इन 1974। फाइन, अब इनका ये था, आगे चल के यही चीज़ें ना इधर डिटेल में दी गई हैं। फाइन, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने 17th अमेंडमेंट एक्ट को अपहेल्ड कर दिया, शंकरी प्रसाद केस को रीअफर्म किया और बोला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आता। ओके, फाइन। सो दिस मच, आई थिंक दिस मच इज क्लियर दैट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस डज नॉट कम अंडर 17th अमेंडमेंट एक्ट, no sorry, this does not come under article 13। ओके, नाउ 17th अमेंडमेंट एक्ट का जो पर्पस था उसका पर्पस यही था कि कुछ स्टेट के एक्ट्स को वो 9th शेड्यूल में ला रहे थे, क्योंकि 9th शेड्यूल ऐसा था कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉज या एक्ट्स हम लोग प्लेस करेंगे उनको जुडिशियल रिव्यू के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो 17th अमेंडमेंट एक्ट क्या कर रहा था, कुछ स्टेट के लॉज को 9th शेड्यूल में डाल रहा था। एंड देन द केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, एंड इन द सज्जन सिंह केस सुप्रीम कोर्ट सेड कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट इक्वल टू एन लॉ अंडर आर्टिकल 13, क्योंकि आर्टिकल 13 प्रोहिबिट करता है ऐसे लॉज को, दोज लॉज दैट आर वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एनी लॉ दैट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट विल बी कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज पर आर्टिकल 13। ठीक है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद आया शंकरी प्रसाद केस, फिर ये लेके आया 17th अमेंडमेंट 9th शेड्यूल से रिलेटेड, उसके बाद आया सज्जन सिंह केस, और उसके बाद 17th अमेंडमेंट एक्ट को फिर से चैलेंज किया गया।
ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में अपना स्टैंस बदल दिया. सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड दैट पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स. Fundamental rights are transcendental and immutable. A constitutional amendment act is also a law under Article 13, which states that any law which is violative of fundamental right will be liable to be claimed void or unconstitutional. Fine. So Golaknath case is important. First time the Supreme Court changed its stance. Once the Golaknath case happened, Parliament reacted with 24th Constitutional Amendment Act. तो अब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है. 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि दे अमेंडेड बोथ आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 टू ओवररूल गोलकनाथ केस. ओके, दे सेट कि आर्टिकल 368 को ही हम अमेंड कर देते हैं, दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट, टू पार्लियामेंट हैज़ द पावर to bring about any change in the constitution including the fundamental rights. तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ये लेके आ गए ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में. फाइन. 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने आर्टिकल 13 को भी बोल दिया कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू टेक अवे और अब्रिज एनी फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो आर्टिकल 13 और 368 दोनों को इन्होंने चेंज करने की कोशिश करी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में. अब सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन आया केशवानंद भारती केस 1973 में. तो केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. अब आ गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. ठीक है, उन्होंने मान लिया आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो आपने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 डाला था वो मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वॉज बॉर्न. केशवानंद भारती केस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज upheld and this was a 13 जज बेंच और 7:6 के रेशियो में इसमें कोर्ट ने मेजॉरिटी जजमेंट दिया था. फाइन. इज द लार्जेस्ट बेंच सो फार. फाइन. ऐसा नहीं है, इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बॉर्न हो गई पर धीरे धीरे इवॉल्व भी करती रही. ठीक है, देयर वर अदर इंस्टेंसेज ऑल्सो. फॉर इंस्टेंस देयर केम द इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 में. ये केस पे क्या आया, इस केस में क्या लेके गए सुप्रीम कोर्ट के पास, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अब 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने क्या बोला कि इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होंगे तो ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है. सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बेसिक स्ट्रक्चर को फिर से रीइटरेट कर दिया और इसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. तो और जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. जुडिशरी रिव्यू कर सकती है. फाइन. देन पार्लियामेंट रिएक्टेड विद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. ठीक है, अटेम्प्टेड टू मेक अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट अनलिमिटेड. नो कोर्ट कैन क्वेश्चन एनी अमेंडमेंट ऑफ द पार्लियामेंट. इन्होंने आर्टिकल 368 4 और 5 ऐड किया. ये केशवानंद भारती से इनका रिएक्शन था. फाइन. नाउ सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस पे 1980 में जजमेंट दिया एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ये जो आपने प्रोविज़न दिए हैं 368 4 एंड 368 5 इनको स्ट्रक डाउन करते हैं क्योंकि ये अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट को दे रहे हैं. ये अमेंड कर रहे हैं आर्टिकल 368 को खुद ही सो दैट दे गेट द अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज limited and this itself is a basic structure of the constitution. फाइन. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया. जुडिशियल रिव्यू को बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का. पार्लियामेंट कैन नॉट कन्वर्ट लिमिटेड पावर इनटू एन अनलिमिटेड पावर. सो दिस केम इन मिनर्वा मिल्स केस जिसमें जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ बिकेम अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. तो अब जैसे यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंदिरा नेहरू गांधी केस में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी है, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने. इधर बोल दिया जुडिशियल रिव्यू भी है. तो पहले तो केशवानंद भारती पे इन्होंने बता दिया कि जुडिशियल रिव्यू टाइप की एक डॉक्ट्रिन होती है. ठीक है, अब उसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन सा फीचर आता है, ये धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा. देन केम योर वमन राव केस 1980
मिनर्वा मिल्स केस के बाद आया वामन राव केस। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाइज टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स इनैक्टेड आफ्टर 24 अप्रैल 1973। तो ये डेट थी केशवानंद भारती केस के जजमेंट थी की, ठीक है। तो ये इस केस को वैसे 9th शेड्यूल भी केस कहते हैं, ये इसमें जजमेंट 9th शेड्यूल के पहले था, तो जजमेंट 9th शेड्यूल से रिलेटेड था। तो 9th शेड्यूल हमें पता है उसमें गवर्नमेंट वो लॉज को या बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड लॉज को प्रेस करती थी और बोलती थी कि ये 9th शेड्यूल इज़ इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पे जुडिशरी नहीं देख सकती है। तो जुडिशियल वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो केशवानंद भारती केस में जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी थी उसके पहले जो एक्ट्स रखे हैं, लॉज रखे हैं, उनमें तो हम नहीं दे सकते, पर उसके बाद जो है उसमें हम बेशक जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था वामन राव केस। तो अब इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ और धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन होता रहा और ये बढ़ता रहा, ठीक है। तो इसको आपको एक दो बार आपको फिर से इसको देखना पड़ेगा सो दैट एवरीथिंग कम्स टू यू इन डिटेल। तो सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस हुआ। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को हमने चैलेंज किया, वो राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल कर रहे थे। क्या बोला? पार्लियामेंट कैन अमेंड लॉ अंडर आर्टिकल 13 इज ओनली ऑर्डिनरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल राइट को हटा दीजिए, कर सकते हैं, ठीक है। फिर आया सज्जन सिंह केस, ठीक है, उसमें भी सेम ही बोला इन्होंने जो केशवानंद भारती में बोला था। फिर आया गोलकनाथ केस, द रिवर्सल हैपेंड बाय 17th अमेंडमेंट एक्ट 9 शेड्यूल के से रिलेटेड था। उसमें इन्होंने बोला कि लॉ अंडर आर्टिकल 13 ऑल्सो कंटेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये हो गया था 1967 में। रिएक्शन आया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। इन्होंने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ही बदल दिया ताकि गोलकनाथ केस को ये ओवर रूल कर सकें, ठीक है। केशवानंद भारती केस आया, 13 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, लार्जेस्ट एवर 7:6 की मेजॉरिटी से डिसाइड किया, हटा दिया इन्होंने। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी अपहेल्ड किया और हटा दिया, गोलकनाथ के जजमेंट को ओवर रूल किया और बोला पार्लियामेंट इज एम्पावर टू अब्रिज और टेक अवे राइट्स, बट व्हाट वाज बॉर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल 368 आपको ये नहीं कहता कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर दीजिए। पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और अब्रिज राइट्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती केस के बाद एक नया डिस्प्यूट हो गया था, इलेक्शन पिटीशन चैलेंज हुई थी इंदिरा नेहरू गांधी केस में। तो उसमें भी 39th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे कि प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर का इलेक्शन अनडिस्प्यूटेड है। इन्होंने बोला कि ये वायलेट कर रहे हैं भाई आपका ये 39th अमेंडमेंट एक्ट, इट इज़ वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर जो कि जुडिशियल रिव्यू और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को गार्ड करता है। तो फिर स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर ये लेके आए 42 1976 में। फिर पार्लियामेंट ने क्या काउंटर दिया, इन्होंने क्या दिया, आर्टिकल 368 और 4 और 5 ऐड किया। आर्टिकल 368 के अंदर ही अमेंडमेंट कर दिया, 2 चीज़ ऐड कर दी 4 और 5, और बोला इनकी पावर अनलिमिटेड है, नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये केशवानंद भारती और इंदिरा गांधी जजमेंट का डायरेक्ट रिएक्शन था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इन्होंने क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। किस केस में बोल दिया? मिनर्वा मिल्स केस में बोल दिया, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ बेसिक फीचर, और आप बेसिक फीचर है और आपका एक्ट इसी बेसिक फीचर को ख़राब कर रहा है, तो इन्होंने हटा दिया, ठीक है। Since the Constitution had conferred a limited amending power on the Parliament cannot, under the exercise of that limited power, enlarge that very power into an absolute power. Indeed, a limited amending power is one of the basic features of the Constitution. और ये भी कहा मिनर्वा मिल केस में कि हार्मनी और बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, दिस इज ऑल्सो अ बेसिक फीचर, ठीक है। वामन राव केस में क्लैरिफिकेशन दिया इन्होंने, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाइज टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनैक्टेड आफ्टर केशवानंद भारती जजमेंट डेट, ठीक है। तो जो लॉ 9 शेड्यूल में इस डेट से पहले आ चुके हैं वो तो इम्यून हैं, ठीक है, पर जो उसके बाद आए
open to challenge. Same thing they also reaffirmed in the IR Coelho case. ठीक है, ये अब आप लोग समझ गए बेसिक स्ट्रक्चर का. फाइन. तो अब हमने अपना जहाँ से क्विट किया था, लैंडमार्क जजमेंट्स, यहाँ तक हमने अमेंडमेंट्स तक पढ़ लिया था और बीच में हम बेसिक स्ट्रक्चर के केसेस के एवोल्यूशन पे चले गए थे. तो वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो भैया हमने पढ़ी. शंकरी प्रसाद केस 1951, सज्जन सिंह केस 1965, गोलकनाथ केस 1967, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल, केशवानंद भारती 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इंदिरा गांधी केस, देन 42nd मिनर्वा मिल एंड वामन राव. ठीक है, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो हुआ था. अब नाउ कम्स द की डिस्ट्रक्शन. बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कुछ एलिमेंट्स डाले गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. ठीक है, फाइन. तो कौन कौन से एलिमेंट हैं वो हम लोग आगे देखेंगे. नाउ क्रिटिसिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस का. अब आप लोग आ जाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस को क्या क्या क्रिटिसिज्म किया गया है. कोई स्पेशल बॉडी नहीं है. सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट ही कर देता है अमेंड. ठीक, पार्लियामेंट ही इनिशिएट कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर इनिशिएट ही नहीं कर सकते. फाइन. फिर मेजर पार्ट ऑफ इस पार्लियामेंट स्टेट कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड ओनली इन वेरी फ्यू केसेस, और वो भी हाफ ही लोगों की चाहिए. फिर नो टाइम फ्रेम, कितने टाइम में स्टेट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है, कुछ नहीं दिया गया है. स्टेट्स कैन विड्रॉ अप्रूवल वंस गिवन, इस पर कुछ नहीं कहा गया है. जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न ही नहीं है. बहुत सिमिलर है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के. ठीक है, स्केची वाइड स्कोप है जुडिशियल इंटरवेंशन का. तो ये सारे क्रिटिसिज्म हैं, ये आप देख लेना. फिर इस पे क्रिटिसिज्म के बाद कुछ पॉइंट्स है, ये यूपी पीसीएस वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसने क्या कहा. केसी वीआर ने बोला कि स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में. एंड दिस वेराइटी इन द अमेंडिंग प्रोसेस इज वाइड एंड रेयरली फाउंड एनीवेयर. दूसरी चीज़, नेहरू ने बोला कि देयर शुड बी सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन स्टॉप्स नेशंस ग्रोथ. फिर अंबेडकर ने बोला प्रोवाइडेड फॉर अ फैसाइल प्रोसीजर फॉर द अमेंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, तो अमेंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका हो गया. ये क्विक वन लाइनर्स हैं फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन. और हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्टार्ट कर ली थी, इन केसेस को समझ भी लिया था. तो अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में जो चीज़ें रह गई हैं वो हम देख लेते हैं. तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपकी आई 1973 में. ठीक है, पार्लियामेंट कैन अमेंड अंडर आर्टिकल 368 एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग योर फंडामेंटल राइट्स बट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर. तो बेसिक स्ट्रक्चर की क्या डेफिनेशन होती है ये हमें नहीं पता. ये सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया था और ये अभी भी इवॉल्व होता जा रहा है केस बाय केस बेसिस पे. क्या क्या होते हैं एलिमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर के. कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम. ठीक है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर. आप चेंज करके मोनार्की नहीं बना सकते. सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का काम नहीं कर सकती, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का काम नहीं कर सकती. फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवीजन. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. वेलफेयर स्टेट. जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ. फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. पार्लियामेंट्री सिस्टम. रूल ऑफ लॉ. हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी. हमने देखा भी था, मिनर्वा मिल केस में हुआ था. इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंदिरा गांधी केस. ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मिनर्वा मिल्स केस. इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस. Principles underlying fundamental rights. Power of Supreme Court under Article 32, 136, 141, 142 ये भी आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर. और इन आर्टिकल्स के अंदर क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे. पावर्स ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ये तो पता होगा, ये रिट से रिलेटेड है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वी विल सी दैट इन फंडामेंटल राइट्स एंड दीज वी विल सी इन द चैप्टर ऑन सुप्रीम कोर्ट. फिर किस केस में कौन कौन सा डॉक्ट्रिन आया ये आप रीड कर सकते हो. किस केस में कौन कौन सा डॉक्ट्रिन आया कुछ आप याद कर लेना. जैसे इंदिरा साहनी केस में रूल ऑफ लॉ आया. ठीक है, इस तरह से अब इंदिरा साहनी केस 2 में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी आया. कुछ चीज़ें आप याद कर लेना. फाइन, देख लेना एक बार, रीडिंग तो कर ही लेना. इट इज़ वेरी, मतलब यूपीएससी में तो पूछना मुश्किल है
आई थिंक मुश्किल है, पर ये कौन कौन से फीचर्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कभी भी आपका इलेक्शन पे या इलेक्शन कमीशन पे या उसके फेयर इलेक्शन पे, इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन आ जाता है, यू कैन कोट दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर नथिंग बट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, right? If you remember the case, you can also write the case in your mains answer. Okay, now these details we have seen. What you have to do is go through them again, so that you know किस केस में क्या हुआ. ठीक है. अब करंट पोजीशन क्या है? पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड विदाउट अफेक्टिंग फंड बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक. सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन किया है. Any act enacted after 24th 1973 can be challenged if it violates basic structure. हमने बोला था आपको 9 शेड्यूल में. Laws placed in the 9th schedule are open to challenge if they abrogate or abridge the basic structure of the constitution. Judicial review is itself the basic structure of the constitution. ठीक है. 9 शेड्यूल और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या है? 9 शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो इन्होंने 9 शेड्यूल बनाया, मतलब इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होने के 1 साल बाद ही ये आ गया था. 1950 में इनैक्ट हुआ, 1 साल बाद ही आ गया था 9th शेड्यूल. इनको लॉज को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड बाय फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. तो IR कोहलू केस में ये बोला गया कि लॉज इन 9th शेड्यूल बिफोर 24th आर इम्यून बिफोर केशवानंद, आफ्टर दिस दे कैन बी स्ट्रक डाउन. यही हुआ है. 9 शेड्यूल से रिलेटेड जो IR कोहलू केस है, जिसको 9 शेड्यूल केस भी कहते हैं, वो इसी से रिलेटेड है. ओके फाइन. दिस इज ऑल्सो 9 शेड्यूल रिलेटेड केस. ओके फाइन. सो वी हैव डन दिस पार्ट, these 2 chapters we have done. Please go through this क्लास एंड गो थ्रू योर बुक एंड रिवाइज इट वंस अगेन. तो आपको अमेंडमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और जहाँ तक कि प्रोविजंस की बात है कि हम कितने रटें, कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर किस जजमेंट से आए या कौन कौन से अमेंडमेंट किस तरह से होते हैं, इसके लिए आप कॉन्स्टेंटली रीड करते रहिए. एंड इफ़ सपोज यू कम अक्रॉस एनीथिंग, फॉर इंस्टेंस डीलिमिटेशन वॉज इन न्यूज़ समटाइम्स अगो, तो यू सी दैट वो ऑर्डनरी लेजिस्लेशन से हो सकता है, कैन बी डन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी. तो लाइक दैट यू विल. और कुछ में आपको अपना एक्यूमेन और अपना इंटेलिजेंस भी यूज़ करना पड़ेगा. फॉर इंस्टेंस द प्रेसिडेंट इज़ फॉर एवरीबडी, तो उसके लिए वी विल ऑल्सो रिक्वायर रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स. सो दैट इज़ हाउ यू कैन understand and you can proceed. Alright, so that's all for these 2 chapters. Now we will come up with another class where we will discuss another chapter so as to finish our syllabus. Thank you very much. Stay tuned.